Hello everyone, I'm Dr. Saman Siddiqui. Today's topic is integumentary system and we will start this topic from introduction and we will discuss what is the definition of integument, how many types of skin, what are the functions of skin and what are the derivatives of skin. So we will start this lecture from introduction. The word integument is derived from the Latin word which means to cover. In this sentence it is clear that integument एक Latin word है. Okay. So the body is invested by an outer leathery covering called skin, or we can completely say it is integument. The integument is an organ and it is an alternative name of skin. Skin and its alternatives like hair, nails and a variety of glands make up the integumentary system. Okay, there are structural changes, morphological and physiological changes appears in different vertebrate series. We can completely see in the structure of species, then amphibia, then reptile, then apes and mammals. This is the diagram showing the structure of skin: epidermis, dermis and hypodermis. So next one is types of skin. Okay, the skin is composed of 3 tissue or layer or cells. In some books it describes there is 3 layers and in some it is 2 layers. So what are the 3 layers? Epidermis, dermis and hypodermis. Epidermis is outer one, dermis after epidermis and hypodermis after dermis. Epidermis, the outermost layer of skin, is known as epidermis. It is composed of many scaly epithelial cells. This is an outer layer of skin. Okay, epidermis is an stratified epithelium and normally quite thin in comparison to dermis. Okay, its layer are mostly made up of dead cells. The outermost region of many layers of dead, usually flattened cells, forms a horny resistance covering. Okay. There are 5 distinct layers of epidermis: stratum corneum, stratum lucidium, stratum granulosum, stratum spinosum, and 5th one is stratum basale. So stratum corneum, outer layer, okay, outermost layer होती है. Stratum lucidium, only found in fingertips and palm of hands and sole of feet. Stratum granulosum, made up of 3 to 5 layers of keratinocytes. Stratum spinosum appears covered in thorn-like spikes, provides strength and flexibility to the skin. Stratum basale, the deepest layer made up of a single layer of cuboidal or columnar cell. The epidermis is made up of 4 cell types. First one is keratinocytes. ये क्या करता है? केराटिन प्रोटीन. ये केराटिन क्या एक्चुअल में प्रोटीन है, फिब्रस प्रोटीन दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट द एपिडर्मिस. देन मेलेनोसाइट प्रोड्यूस द ब्राउन पिगमेंट मेलानिन. Langerhans cells participate in immune response. Okay, it participates in immune response formed in bone marrow. Merkel cells participates in the sense of touch, connected to nerve cells from epidermis. Then dermis. So what is epidermis? Dermis, the innermost thick layer of the skin composed of dermis, lies beneath the epidermis and contains blood vessels. उसमें बहुत सा होता है, blood vessels होता है, nerve fibers, glands, sense organs, smooth muscles and hair follicles. Okay, it is also it is the innermost layer of skin, है ना, and is completely thicker than epidermis. It is composed of fibrous connective tissue and contains many blood capillaries. Okay. Then hypodermis, और hypodermis को हम subcutaneous layer भी बोलते हैं. The hypodermis is not part of skin. इसे हम false hypodermis भी बोल सकते हैं. And lies below the dermis. Its purpose is to attach the skin to underlying bone and muscles. Okay. Its purpose is to attach the skin to underlying bone and muscles as well as supplying it with blood vessels and nerves. So, function of skin.
The skin of human body has various functions. Some of these are, first one is protection. One of the main function of skin is protection from invasion by microbes, chemicals and physical agents. ह्यूमन बीइंग हो या मैमल्स हो, उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी बॉडी में स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम हेयर रूम्स बोलते हैं. फिशेस की बॉडी में भी प्रोटेक्शन होता है स्किन के थ्रू. उनकी बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट होती है. देन सेंसरी फंक्शन. फ्री नर्व एंडिंग ऑन द स्किन आर सेंसिटिव टू पेन, टच, हीट एंड कोल्ड. सेंसरी फंक्शंस प्रेजेंट होता है. ओके. द नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन. सम एक्सक्रीट सोडियम क्लोराइड in sweat, urea when kidney function is impaired, and aromatic substances. Some species excrete through skin and some of the species excretes respire through skin. Regulation of body temperature. हमारी बॉडी में जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो स्वेटिंग के फॉर्म में वो क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है. फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी. Fatty substance present in skin is converted to vitamin D in the presence of UV lights from sun. Okay, vitamin D हमको कहाँ से मिलता है? सन से. तो वो कैसे मिल रहा है? Absorption. It absorbs some drug with low molecular weight as well as toxic chemical like mercury. Water resistance. The skin acts as water resistance barrier. सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट आर नॉट वॉश्ड आउट ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे स्किन के प्रेजेंस की वजह से हमारी बॉडी से वॉश आउट नहीं होते हैं. देन डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन. मेजर पार्ट. द स्किन इटसेल्फ इज रिलेटिवली सिंपल बट इट्स डेरिवेटिव्स ऑफ नंबर आर नंबर्स एंड बहुत से होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं. फर्स्ट वन इज एपिडर्मल डेरिवेटिव्स एंड सेकेंड वन इज डर्मल डेरिवेटिव्स. तो एपिडर्मल और डर्मल. एपिडर्मल से आपको ये समझ में आता है कि आउटर एंड डर्मल मीन्स नेक्स्ट टू एपिडर्मिस. सो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्यूमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू टू. फर्स्ट वन इज सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स एंड सेकेंड वन इज हार्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स. सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स. इंटीग्यूमेंटल और एपिडर्मल ग्लैंड्स आर फाउंड बाय माल्फिजियन लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस. ठीक है, जो सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स होता है, इंटीग्यूमेंटल और एपिडर्मल ग्लैंड्स आर फाउंड बाय द माल्फिजियन लेयर ऑफ एपिडर्मिस. इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? दे में बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ट्यूबुलर भी हो सकता है, एल्व्यूलर भी हो सकता है. ठीक है, इन शेप, और सिंपल, कंपाउंड और ब्रांच भी हो सकता है. ठीक है. सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स का जब हम बात करते हैं तो वो क्या क्या हो सकता है? सॉफ्ट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है. ओके. और ये जो होता है, दे आर लाइंड बाय क्यूबॉइडल सेल्स और कॉल्यूमनर एपिथेलियम. दे आर यूजुअली नेम्ड आफ्टर देयर नेचर और फंक्शन. इनको क्या किया गया? जैसे यूनिसेलुलर. फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ग्लैंड्स. तो इसमें सिर्फ म्यूकस ग्लैंड आएगी क्योंकि वो क्या होती है? यूनिसेलुलर. ओके. देन सेकेंड वन सिंपल एल्व्यूलर ग्लैंड. इट इंक्लूड्स पॉइजन ग्लैंड एंड फीमोरल ग्लैंड्स. फीमोरल ग्लैंड किस में प्रेजेंट होती है? फीमोरल ग्लैंड्स जो होती है बर्ड्स में प्रेजेंट होती है. फीमोरल ग्लैंड्स. ठीक है. नेक्स्ट वन इज सॉरी फीमोरल ग्लैंड्स जो होती है यूरोमेस्टिक्स लिजार्ड में प्रेजेंट होती है. थर्ड वन इज सिंपल ब्रांच्ड एल्व्यूलर ग्लैंड. वो किसमें एक्चुअली ये होती क्या है? यूरोफाइजियल ग्लैंड किसमें प्रेजेंट होती है? वो बर्ड्स में प्रेजेंट होती है. स्कैन ग्लैंड, सिबेकियस ग्लैंड. सिंपल ट्यूबुलर कॉइल्ड ग्लैंड. क्या होता है? ये सॉफ्ट एपिडर्मल का ही डेरिवेटिव्स का ही है. सिंपल ट्यूबुलर कॉइल्ड ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड. तो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स. ठीक है, हमने देख लिया कि यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में क्या आएगा. अब हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ग्लैंड्स. और यूनिसेलुलर ग्लैंड में आता है म्यूकस ग्लैंड. दे सिक्रीट म्यूसिन्स विच फॉर्म स्लीमी और sticky mucus on coming contact with water. Okay, mucus keeps the skin moist and slippery to protect against harmful bacteria and fungi. Like as an example, fish की बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट होता है जो कि कंटिन्यू म्यूकस का सिक्रेशन कर रहा है. फिश की बॉडी का मूवमेंट जो हो रहा है, मतलब वो मूव करते हुए अगर किसी सबस्ट्रेटम से टकरा जाती है तो उसकी बॉडी में क्योंकि म्यूसिन का कंटिन्यू सिक्रेशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया या
फंगस उसकी बॉडी पे अफेक्ट नहीं कर पाएगा. ओके, एंड दे आर अबंडेंट इन एम्फीबियंस स्किन. ओके, ये एम्फीबियंस की स्किन में बहुत ज़्यादा होती है. साइक्लोस्टोम्स में होती है, फिशेस में होती है, एंड स्मॉल एम्फीऑक्सिस में भी होती है. ठीक है, ये कैसी होती है? ग्रेन्युलर सेल्स. नेक्स्ट वन, सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड्स. सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड्स पॉइजन ग्लैंड जैसे. मैनी फिशेज एंड एम्फीबियंस हैव पॉइजन ग्लैंड. बहुत सी ऐसे फिशेज होती हैं और एम्फीबियंस होते हैं जिनमें कि पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होती है. एक्चुअली दीज आर मॉडिफाइड मल्टी सेलुलर क्यूटेनियस ग्लैंड्स. ठीक है, ये लार्जर भी होती है और कुछ में जो होती है ना मतलब एंड बट फ्यूअर देन म्यूकस ग्लैंड. जो म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है उससे कम होती है ये. ठीक है, और द पैरोटिड ग्लैंड्स बिहाइंड द हेड ऑफ टोड्स आर एग्रीगेशन ऑफ पॉइजन ग्लैंड. सिक्रीशन ऑफ पॉइजन ग्लैंड में भी ये एक्चुअल में क्यों होता है उनकी बॉडी में प्रेजेंट? इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि वो अपने जो मतलब जो उसके लिए एनिमी, सामने जो उसका एनिमी है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट वन इज फीमोरल ग्लैंड्स. दीज आर फाउंड इन मेल लिजार्ड. मैंने आपको बताया कि लिजार्ड में प्रेजेंट होता है, मेल लिजार्ड में, और वो स्पेसिफिक क्या है? यूरोमेस्टिक्स. ठीक है, वहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? वेंट्रल सरफेस ऑफ ईच थाई इन अ सिंगल रो. ठीक है, वो क्या होता है? फीमोरल पोर्स होते हैं वहाँ पे 12 से 18. ठीक है, फ्रॉम द नी टू क्लोइकल एपर्चर. और ये एक्चुअल में क्यों होता है उसकी बॉडी में? टू होल्ड द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन. फीमोरल ग्लैंड प्रेजेंट इन मेल लिजार्ड, यूरोमेस्टिक्स, एंड it is present because to hold the female during copulation. Then simple branched alveolar gland. ओके, सिंपल भी है, ब्रांच्ड भी है और एल्वियोलर भी है. इसका मैं आपको आगे डायग्राम दिखाऊंगी. सो फर्स्ट वन इज यूरोफाइजल ग्लैंड. यूरोफाइजल ग्लैंड किसमें प्रेजेंट होती है? स्पेसिफिकली ये जो होती है बर्ड्स में प्रेजेंट होती है. इट इज़ वन ऑफ द फ्यू इंटीग्यूमेंट्री ग्लैंड्स फाउंड इन बर्ड्स. ठीक है, फॉर्मिंग अ प्रोमिनेंट स्वेलिंग जस्ट अबव द टेल, और इसे हम कहते हैं यूरोफाइजियम. ठीक है, इट इज़ ब्रांच और एल्वियोलर. मैंने आपको पहले बताया वो ब्रांच भी है, सिंपल भी है और एल्वियोलर भी है. ठीक है, और ये क्या करती है? ये भी जो प्रेजेंट होती है इसकी बॉडी में अट्रैक्ट प्रेजेंट टू अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. द नेक्स्ट वन, sebaceous gland. These are branched alveolar glands opening into hair follicles of mammals. They may open directly into skin surface, such as around the genital organ, tip of nose, or edge of lips. ठीक है, their only secretion called sebum. Sebum means grease. Okay, keep the skin hair soft, greasy, waterproof. ठीक है, sebaceous gland. Sebum means grease, मतलब चिकनाहट. The next one, skin gland. These are modification of sebaceous gland of mammal. एक्चुअल में ये क्या है? sebaceous gland का ही modification है. ओके, और इसे हम क्या बोलते हैं? Pseudoriferous glands of mammals. ये एक्चुअल में क्या होता है? Scent means होता है smell. Their odorous secretion serve to repel foes. ठीक है, मतलब ये एक्चुअल में क्या प्रेजेंट क्यों होता है? अट्रैक्ट मेंबर्स ऑफ अपोजिट सेक्स. उनकी बॉडी से स्मेल आता है जिसकी वजह से अपोजिट जो सेक्स वाला जो सामने एनिमल रहता है वो उनसे अट्रैक्ट होता है. जैसे कि इसका एग्जांपल है गोट हो गया, हॉर्स हो गया, डियर की फैमिली हो गई, मस्क डियर. ठीक है, और बहुत सारे कार्निवोर्स भी होते हैं. सिंपल ट्यूबुलर कॉइल्ड ग्लैंड्स. ठीक है, सिंपल भी रहेगी, ट्यूबुलर भी रहेगी, कॉइल्ड भी होगी और ग्लैंड भी सॉरी ग्लैंड होगी. देन नेक्स्ट क्या है? स्वेट ग्लैंड. हमें पता है स्वेट ग्लैंड क्या है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? स्वेट ग्लैंड पूरी कॉइल्ड होती है और फिर वो निकल जाती है एपिडर्मिस से बाहर, है ना. तो इसीलिए सिंपल भी है, ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन भी है और कॉइल्ड भी है. सो स्वेट ग्लैंड आर अबंडेंट इन द स्किन ऑफ मैमल्स. ठीक है, सुडोर मीन्स होता है स्वेट. आर अबंडेंट इन स्किन ऑफ मोस्ट मैमल्स. दे आर स्लेंडर, कॉइल्ड, ट्यूब एम्बेडेड डीप इन द डर्मिस. वो डर्मिस पे धसी रहती है कॉइल फॉर्म में, देन ट्यूब फॉर्म में वो एपिडर्मिस से बाहर आ जाती है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज मेमोरी ग्लैंड. दीज आर कंपाउंड ट्यूबुलर दैट प्रोड्यूसेस मिल्क. Actually, it is the specific characteristics of mammals. These are compound tubular gland that produce milk during lactation period for feeding the young ones.
So here is the diagram showing simple tubular gland, and second one is simple alveolar, compound tubular, compound alveolar, and compound tubulo-alveolar. Different types of epidermal glands. So now hard epidermal derivatives. Epidermal derivatives, okay, एपिडर्मल सॉफ्ट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स कंप्लीट हुआ, उसमें हमने सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, कैसा स्ट्रक्चर होता है. देन हार्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स. हार्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स इंक्लूड्स एपिडर्मल स्केल्स. ओके, एपिडर्मल्स all the hard horny structure developed by the accumulation of the scleroprotein known as keratin. Okay, in the cell of epidermis, such cells are said to be keratinized and they become now dead. So epidermal scales. Reptiles have a continuous outer covering of horny epidermal scales that prevent water loss through skin surface. Okay. In lizard, अगर हम lizard का बात करते हैं, in lizard scales are thin, small, overlapping and periodically molted in small pieces. ठीक. If you are talking about birds, in birds small epidermal scales are present on the lower leg, foot and base of beak. और पूरी बॉडी में तो feather present होता है. If you are talking about fishes, in fishes 5 types of dermal scales known depending on their structure in fishes are cosmoid scale, placoid scale, ganoid scale, cycloid scale and last one is ctenoid scale. So second one is horn. Horn are found in hoofed mammal. Okay, तो हॉर्न जो होते हैं ये क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज ट्रू हॉर्न्स, जो कि सिर्फ गोट्स में प्रेजेंट होते हैं, शिप में प्रेजेंट होते हैं और कैटल्स में प्रेजेंट होते हैं. देन हो गया सॉरी हॉर्न्स जो है ना, ठीक है, ट्रू हॉर्न्स जो होते हैं हॉलो होते हैं. ठीक है, यूजुअली ऑकर इन बोथ द सेक्सेस, इन गोट, शिप, कैटल एंड अदर्स. दे आर अनब्रांच्ड, सिलिंड्रिकल एंड टेपरिंग. ये सिलिंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच होते हैं और टेपरिंग होते हैं. दे आर परमानेंट स्ट्रक्चर दैट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ एंड नेवर शेड. ये होता है जो ट्रू हॉर्न होता है, उसे हम हॉलो हॉर्न भी बोलते हैं और ये शेड नहीं होता. दे आर परमानेंट स्ट्रक्चर दैट कंटिन्यू ग्रो होता है थ्रू आउट लाइफ. ओके, एंड नेवर शेड. वो ग्रो होता है लेकिन शेड नहीं होता. Second one is antler. Antler are characteristics of deer family. Okay, these are characteristics of deer family. They are found only on males, but both the sexes in reindeer. Okay, ये मेल्स में प्रेजेंट होता था लेकिन सिर्फ रेनडियर में दोनों सेक्सेस में, मेल और फीमेल में प्रेजेंट होता है. Antlers are annual growths and not true horns. This is called not true horns. After the breeding season is over, the antlers are also shed. New antlers develop. Okay, क्या होता है, ब्रीडिंग पीरियड के बाद में ये एंटलर जो होता है शेड हो जाता है और एक नया बनता है. सो ट्रू हॉर्न्स नेवर शेड, एंटलर्स शेड इन अ ईयर और आफ्टर ब्रीडिंग पीरियड. जिराफ हॉर्न. दे आर stunned, unbranched and permanent. Horns of giraffe are stunned, unbranched and permanent antlers present in both the sexes, female and male. Giraffe horn remains covered with simple unmodified skin of or velvet which is never shed. ये भी जो होता है शेड नहीं होता और उनकी बॉडी मतलब थोड़ा वेलवेटिक रहता है. Hair horns. These are found in both the sexes of rhinoceros. Okay, hair horns of or fiber horns, we can also say fiber horns, are found in rhinoceros of both the sexes. Okay, these horns are entirely made up of thick, hairy and keratinized epidermal fiber. Okay, वो दोनों एक साथ यूज होता है, यूज टुगेदर. These are permanent structure and if broken they again grow. अगर ये ब्रोक हुआ तो फिर से ग्रो आउट हो जाता है. सो दिस इज द डायग्राम showing structure of horns, different structures of horns. Third one, nails. So claws are modified into nails which are characteristics of primates, means mammals. Okay,
सो नेक्स्ट वन है क्लॉज. It is made by hard, pointed, narrow, curved, horny dorsal plates. Claws of, if we are talking about reptiles, birds and mammals. So claws of reptile, birds and mammals are identical in structure. Okay, claws is made by hard, pointed, narrow, curved, horny dorsal plate called. ये क्या होती है एक्चुअल में ना, बहुत हार्ड होता है. ठीक है. थर्ड वन इज, सॉरी नेक्स्ट वन, feather. Generally, three types of feather are recognized: contour feather, down feather, and filoplume feather. Okay, you can see in the structure contour feather, down feather, and filoplume feather. Now, hair. These are the characteristics of mammals. Each hair originates from the bottom of the hair follicle of epidermis into dermis. देखिए, each hair originates from the bottom of hair follicle of germinative layer of epidermis into dermis. Typically, the hair shaft consists of three layers: external cuticle, external cuticle made up of overlapping microscopic scales, middle cortex containing shriveled cells and pigments, and inner medulla containing air space in larger hair. Then dermal derivatives. So here epidermal derivatives completes, and then we will start dermal derivatives. So dermal derivatives, bony structure develop within the dermis. Okay, bony structure develop within the dermis. So dermal scales of fishes. सबसे पहले हम अगर स्टडी करते हैं तो स्केल्स जो प्रेजेंट होती है फिशेस की बॉडी में, 5 टाइप्स ऑफ डर्मल स्केल्स आर नोन डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर्स ऑफ फिशेस. हमने जो अभी पढ़ा है अब वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वन इज कॉस्मोइड स्केल. कॉस्मोइड स्केल होता है, दीज स्केल्स आर फाउंड इन कोएनोकाइथिस, लेटिमेरियंस. दीज स्केल्स आर मेड अप ऑफ 4 लेयर्स. सबसे पहली होती है जो फर्स्ट लेयर इज मेड बाय हार्ड विट्रोडेंटाइन और वी कैन से इनेमल. सेकेंड लेयर इज मेड बाय कॉस्मोइन. Third layer is made by spongy bone. In this layer, vascular space is found in which pulp cavity and odontoblast cells are present. Okay. Spongy bone जो होती है, third layer is made up of spongy bone. In this layer, vascular space is found. इसमें जो होता है vascular space मिलता है, दिखता है. ठीक है. In which pulp cavity and odontoblast cells are present. Spongy bone जो होता है उसमें जो present होता है ना vascular space, वहाँ पे odontoblast मिलता है. Then next, placoid scale. These scales are found in cartilaginous fishes, specific cartilaginous fishes. Okay. Elasmobranchiae, specific example, Scoliodon. Common name of Scoliodon is dogfish. These scales are arranged in closely placed regular oblique rows, their end projecting over the surface of the body and are backwardly directed. These scales are found in the cartilaginous fishes. हो गया. They form teeth in lower jaws. ठीक है. देयर इज बेसल पार्ट इन द प्लेकॉइड स्केल. इट इज एम्बेडेड इन द डर्मिस. अ स्पाइन अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्किन. द प्रेजेंस ऑफ प्लेकॉइड स्केल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इलास्मोब्रांक. ठीक है. एंड एग्जाम्पल ऑफ इलास्मोब्रांक, स्कोलिडॉन. कॉमन नेम ऑफ स्कोलिडॉन इज डॉगफिश. दीज स्केल्स आर अरेंज्ड इन क्लोजली प्लेस्ड रेगुलर ऑब्लिक रो. ठीक है. their ends projecting over the surface of the body and backwardly directed. इसका जो कुछ पार्ट रहता है ना, प्लेकॉइड स्केल इज फाउंड बाय द डर्मिस. यही एक पर्टिकुलर ऐसी स्केल है जो कि डर्मिस से होती हुई एपिडर्मिस से अराइज हुई है. सेकेंड वन, गेनॉइड स्केल. देयर इज अ शाइनी कवरिंग ऑफ गेनॉइड on the scales. These scales are attached by peg and socket joints and are therefore movable. Okay, ये क्या होती है एक्चुअल में? मूवेबल होती है. गेनॉइड स्केल्स जो होती है मूवेबल होती है. साइक्लॉइड स्केल, दे आर थिन सर्कुलर एंड बोनी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर. दे आर फाउंड बाय डर्मिस एंड कवर्ड बाय एपिडर्मिस. ओके, कवर्ड बाय एपिडर्मिस. साइक्लॉइड स्केल जो होती है, they are thin circular and bony plate like structure. They are found by the dermis and covered with in epidermis. These scales are found in Amia calva, Tilos fishes. और यही एक स्केल है जिससे कि फिशेस की एज मापी जाती है. नेक्स्ट वन, स्टेनॉइड स्केल. दे आर ऑल्सो सर्कुलर बट डिफर फ्रॉम साइक्लॉइड स्केल. इसका स्ट्रक्चर भी साइक्लॉइड की तरह रहता है बट फिर भी वो डिफरेंट है.
in that their free margins are scattered and small spines are found on the fish on these scales. अभी मैं आपको structure show करूँगी. So this is the diagram. This is the structure of scales. Placoid scale, ganoid scale, cycloid and ctenoid. साइक्लॉइड स्केल का स्ट्रक्चर देखिए, सर्कुलर प्लेट्स दिख रही हैं. ये क्या करती है, फिश की एज को नापते हैं इससे. टिनॉइड स्केल, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि इसकी बॉडी में जो टिनॉइड स्केल जो होता है, स्पाइंस, स्मॉल स्पाइंस आर फाउंड. थैंक यू. एपिडर्मल एंड डर्मल डेरिवेटिव्स कंप्लीट. थैंक यू सो मच.